Namaskar students, welcome back. This is your Pooja ma'am teaching you EVS. Students, how are you all? I hope you all are good. So students, as you know, we started solving textbook exercise of chapter number 6, Food for Health. Food for Health. And we already solved section 1 A part. Choose the correct option. And same thing you have to do in your homework. I hope you all have done that. So students, today we will solve section 1 B part. Section 1 B part. I request you to open the page number 70 of your textbook. Page number 70 of your textbook. Now, section A B1. Write true for the true statement and false for the false one. Write true for the true statement and false for the false one. Here you have to write true on the correct sentence and false for the wrong sentence. So let's start. First one is, we should eat food from only one food group to stay healthy. We should eat food from only one food group to stay healthy. It means कि हमें एक ही फ्रूट ग्रुप में से खाना खाना चाहिए to stay healthy. What do you think? मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया तो आपको बताया था कि हमें कौन कौन से फूड ग्रुप्स खाने चाहिए. तो हमें जो है वो सारे फ्रूट ग्रुप में से थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए टू स्टे हेल्दी एंड फिट. तो इट इज़ फॉल्स. राइट हियर फॉल्स. FALSE. फॉल्स. सेकेंड वन, chickpea is a body building food. Chickpea is a body building food. Yes. हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रो करने के लिए क्या ज़रूरत होता है? प्रोटीन की. एंड चिकपीज आर वेरी रिच इन प्रोटीन. चिकपीज में क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है जो हमारे बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है. राइट? तो इट इज़ ट्रू. Write here TRUE. True. Chickpea is very good for bodybuilding. Next is, eating too much of healthy foods can be unhealthy. Eating too much of healthy foods can be unhealthy. अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खाते रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. इसलिए हमें हर खाना थोड़े थोड़े लिमिट में खाना चाहिए. बहुत ज़्यादा एक्सेस खाना हमें नहीं खाना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम अगर केले खा रहे तो पूरे दिन केले ही खाते रहे. नो, हमें सारे फूड ग्रुप्स में से थोड़ा थोड़ा खाना जो है वो खाना चाहिए. तो इट इज़ ट्रू. TRUE. ट्रू. Now next one. We usually eat 3 meals in a day. We usually eat 3 meals in a day. हम लोग जो है वो यूजुअली 3 meals खाते हैं पूरे दिन में. Is it correct? Yes, it is correct. कौन कौन सा? Breakfast, lunch, dinner. These are the main 3 meals in a day. So you have to write true over here. TRUE. True. Next one. We should take more food in our plates than we eat. We should take more food in our plates than we can eat. हमें जो है हमारी प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना रखना चाहिए जो हम खा सकते हैं. इज़ इट करेक्ट? नो, हमें सिर्फ उतना ही खाना लेना चाहिए जितना कि हम खा सकें. बहुत ज़्यादा प्लेट भर लेंगे और हम उसे फिनिश नहीं कर पाएंगे तो वो क्या होगा? फूड जो है वो वेस्ट हो जाएगा. इसीलिए हमेशा हमें अपनी प्लेट में जितना हम खा सकें उतना ही खाना लेना चाहिए. तो दिस इज़ फॉल्स. राइट हियर फॉल्स.
F-A-L-S-E, false. F-A-L-S-E, false. I hope you have understand these questions. Now section second, very short answers type questions. Very short answer type questions. यहाँ पे जो है आपको वो आंसर जो है वो शॉर्ट में लिखने हैं. उसका ए पार्ट, गिव 2 examples for each of the following. Give 2 examples for each of the following. हमें जो यहाँ पे दिए हैं उनके 2 examples लिखने हैं. तो फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड. कौन कौन से फूड जो होते हैं हमें एनर्जी देते हैं? Yes, rice, wheat, R-I-C-E, rice, W-H-E-A-T, wheat. Rice and wheat are the energy giving foods. Next is body building foods. Body building foods जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं. ऐसे फूड्स के नाम हमें लिखने हैं. तो that are egg, milk, E-double-G, egg, M-I-L-K, milk, M-I-L-K, milk. Next is protective foods. Protective foods, ऐसे फूड जो हमें बीमार होने से बचाते हैं. ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जो हमें बीमार होने से बचाते हैं? Yes, that are fruits, nuts. आप वेजिटेबल भी लिख सकते हो, राइट. आपके आंसर जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट आपको सेम आंसर लिखने हैं तो आप सेम आंसर भी लिख सकते हो. मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको वैरायटी ऑफ फूड्स के बारे में बताया है. कौन से एनर्जी गिविंग होते हैं, कौन से बॉडी बिल्डिंग होते हैं, कौन से प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं. तो आप अपने हिसाब से टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन में देख के भी लिख सकते हो. आपको सेम आंसर लिखने हैं तो आप सेम आंसर्स भी लिख सकते हो. नेक्स्ट इज अनहेल्दी फूड्स. अनहेल्दी फूड्स, ऐसे फूड्स जो अनहेल्दी होते हैं. कैसे फूड जो अनहेल्दी होते हैं? तो कौन कौन से फूड अनहेल्दी होते हैं? चिप्स एंड कोलास. चिप्स, कोलास, ये जो है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड होते हैं. इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती. नेक्स्ट इज मील्स इन अ डे. मील्स इन अ डे, ऐसा खाना जो हम डिफरेंट पर्टिकुलर टाइम पे खाते हैं, राइट. तो फर्स्ट इज लंच, डिनर, L-U-N-C-H, लंच, D-I-N-N-E-R, डिनर, राइट. अगर आप चाहो तो ब्रेकफास्ट भी लिख सकते हो. सो स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 71. ओके, ऑन पेज नंबर 71, नेम द फॉलोइंग. Name the following. First one, foods that make our muscles and bones strong and help us to grow. Foods that make our muscles and bones strong and help us to grow. ऐसा खाना जो हमारे मसल्स और बोन को स्ट्रॉन्ग करता है और हमें ग्रो होने में हेल्प करता है. मैंने आपको 3 फूड ग्रुप्स के बारे में बताया था. फर्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव एंड एनर्जी गिविंग. तो यस, करेक्ट आंसर इज बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड, ऐसा खाना हमें मसल्स को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है. नेक्स्ट इज फूड्स दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग इल. फूड्स दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग इल, ऐसा खाना जो हमें बीमार होने से बचाए. कैसा, कौन सा ग्रुप है? यस, प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड जो है वो हमें बीमार होने से बचाता है. नेक्स्ट इज द मील दैट गिव अस एनर्जी वी नीड टू वर्क एंड प्ले ड्यूरिंग द डे. The meal that give us energy we need to work and play during the day. कौन सा मील है?
यस, ब्रेकफास्ट। हमें जो है वो ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, मतलब कि कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा ब्रेकफास्ट जो है वो करना ही चाहिए। उससे क्या मिलता है, हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी मिलती है पूरे दिन वर्क करने के लिए। ओके, तो ब्रेकफास्ट हमें ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए। नेक्स्ट इज द मील वी हैव इन द आफ्टरनून। द मील वी हैव इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में हम कौन सा मील खाते हैं? यस, आंसर इज लंच। लंच जो है वो हम आफ्टरनून में खाते हैं, लंच। नेक्स्ट इज द फूड एंड ड्रिंक that a person usually take at a specific time of the day. The food and drink that a person usually takes at a specific time of the day. ऐसा खाना या ड्रिंक जो इंसान जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे लेता है उसे हम क्या कहते हैं? मील। मील, MEAL, मील। जो डिफरेंट खाना हम खाते हैं डिफरेंट टाइम पे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दिस ऑल आर कॉल्ड मील, MEAL, मील। सो स्टूडेंट्स, दिस आर ऑल फॉर टुडे. I hope you will do same thing in your textbook, only in textbook, not in notebook. Okay, ये सब आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है. So students, in my next video we will solve short question and answers. आप अपने आप से ढूंढने की कोशिश करना, नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे तो मैं हूँ ही आपको बताने के लिए, बट एटलीस्ट ट्राई, आप ट्राई करो, you will find the answers. So students, see you in next video. Till then, bye bye, take care.